Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस विषय पर हमें अपना सद्विचार और चिंतन प्रदान करने, हमारे जीवन में पथ प्रदर्शित करने हेतु हमारे बीच पधारे हैं अनंत श्री विभूषित द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी। आपको अत्यंत आदरपूर्वक नमस्कार व स्वागत। साथ ही बहुत आदरपूर्वक स्वागत करते हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के अध्यक्ष तथा हिंदू धर्म आचार्य सभा के संयोजक व महासचिव स्वामी श्री परमात्मानंद सरस्वती जी का भी। और अब बहुत समय न लेते हुए मैं बड़े आदर के साथ विनती करना चाहूंगी शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष स्वामी श्री परमात्मानंद सरस्वती जी को अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। तालियों स्वागत करजो આપણે। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। पश्चिमामनाय द्वारका पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। Blessed संदीप भाई, राजेश भाई and the team and the distinguished members. Very aptly put by Sandeep Bhai that we all of you have reached to some extent pinnacle of success. The modern governments across the world has only one economic model, that is to enhance the GDP. This is originally that David Smith, one economist, he gave the model and what we popularly call as capitalist society. In fact, if you look at the world scenario, there is no foreign policy except the commerce policy. That's all foreign policy is. And I am sure, though you have reached the pinnacle of success, you will reach further pinnacles. Because government is determined to take India to Bharat to number 3 positions. And all state level Chamber of Commerce and Industry are the engine and society is the wheel. So first of all, wish you all good luck. May your car and the train go fast. And may you earn a lot of money. Parantu, one more thing, જે हमने concern raise કર્યું, જરાક સમજો, આપણી સંસ્કૃતિમાં अर्थ અને કામને ખરાબ ગણ્યા જ નથી। વિષય ઈચ્છા હોવી એ સ્વાભાવિક છે અને ભગવાન સ્વયં સ્વીકારે છે। બીજા બધા ધર્મોમાં જુદું છે। કલ્પના કરો કે કામ દેવતા સ્વયં ભગવાનનું સંતાન થઈને અવતરે છે, પ્રદ્યુમ્ન અવતાર।
પૈસા કમાવા ખોટું નથી કે પૈસા હોવા એ ખોટું નથી, એની નિંદા આપણે નથી કરી. પણ એક બહુ સરસ વાક્ય ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે, ધર્મા વિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામોસ્મિ ભરતર્ષભ. પૈસાની ઈચ્છા હોય, સત્તાની પણ ઈચ્છા કેમ ના હોય, હોવી જોઈએ. આપણો ધર્મ એવું નથી કહેતો બધું છોડો. યુ કેન બી એમ્બિશિયસ, નથિંગ રોંગ ઇન ઇટ. પણ શીખવાનું શું છે જીવનની અંદર કે દુર્યોધન અને અર્જુનની સેનામાં શું તફાવત છે. આમ તમે જુઓ તો દેવતા અને દાનવો કોઈ ફેર જ નથી. આપણે નાનપણમાં બધી વાર્તાઓ સાંભળી, એ બંને સ્વર્ગ માટે જ લડે છે, બીજું કરે છે હું. આમ જુઓ તો દે આર ફાઇટિંગ ફોર હેવન, અને બંને રાજ્ય માટે જ લડે છે. અર્જુન સ્વયં બોલે છે, કિન્નો રાજ્ય ન ગોવિંદ કિમ ભોગેર જીવિતેન વા. જ્યારે શોક ઊભો થયો, હવે રાજ્યને શું કરવું, ભોગને શું કરવા આવે, પહેલા તો એ જોતું હતું ને દુર્યોધનને પણ જોતું હતું. તો શા માટે ભગવાન અર્જુનના પક્ષે છે? દેવ અને દાનવ બંને લડે છે સ્વર્ગ માટે, તો શા માટે ભગવાન દેવતાઓના પક્ષે? એક જ કારણ છે, અર્જુનની માનસિકતા અને દુર્યોધનની માનસિકતા. બલાબલનો વિચાર કરીએ છેલ્લી મિનિટે, તમારી ભાષામાં કહે તો સ્વોટ એનાલિસિસ કરીએ. એ સ્વોટ એનાલિસિસ મૂકે છે ગીતામાં. વીકનેસ ને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બધું કહે છે, સ્ટ્રેન્થ એમાં લિસ્ટમાં આપે છે બધું, ને છેલ્લે કહે છે અન્ય ચ બહવ શૂરાઃ મદર્થે ત્યક્ત જીવિકા. બીજા કેટલા યોદ્ધાઓ છે જે મારા માટે મરવા આવ્યા છે. એને મન બીજાનું શું થાય એની કઈ અસર જ નહીં. વોઝ લીસ્ટ કન્સર્ન. આઈ વોન્ટ ધ કિંગડમ, આઈ વોન્ટ ધ પાવર, આઈ વોન્ટ ધ પ્લેઝર, ફૂલ સ્ટોપ. અને આ બધા મારા માટે મરવાની તૈયારી સાથે આવ્યા છે. અને જ્યારે અર્જુન કહે છે યેષામ અર્થે કાંક્ષિતમ નો રાજ્યમ ભોગા સુખાની છે તૈ મેં અપસ્થિતા યુદ્ધે પ્રાણામ સ્તક્વા ધનાની છે. હે પ્રભુ, આ મારા માટે નથી જોઈતું, બધા માટે જોઈએ છે. જેના બધા માટે મારે રાજ્ય જોઈએ છે તો મરી જશે, એટલે મારે રાજ્ય લઈને શું કરવું? આ ભેદ છે. અને આનું નામ જ ધર્મ છે. માત્ર સ્વનો વિચાર કરવો એ તો જન્મજાત પ્રાણીની જ પ્રવૃત્તિ છે. અને આપણે પણ એવા જ હતા. શેરીના કૂતરાને રોટલી માટે બોલાવો તો એની માં હોય તો ભલે હા કરીને રોટલી લઈને ભાગશે. કાગડો પણ શ્રાદ્ધ પક્ષે પૂરી લઈને ભાગશે પોતાનું. અને આપણે નાના હતા ત્યારે મા બાપની સગવડ અગવડ કશું જોયું નથી. મારે રમવું છે એટલે રમવું છે, મારે નથી આવું એટલે નથી આવું. તમારા પૌત્ર તમને આ રીતે હેરાન કરતા જશે. આજે હું આ જ પહેરીશ, આજે નહીં ખાવું, આમ જ ખાઈશ. માણસનો વિકાસ ખાલી કેટલા પૈસા ભેગા કર્યા, કેટલી સંપત્તિ ભેગી કરી, કેટલો યશ ભેગો કર્યો એ નથી. ધ હ્યુમન ગ્રોથ શુડ બી હોલિસ્ટિક ગ્રોથ. જે સંદીપભાઈએ કહ્યું ને ખાલી પોસ્ટ જીવનમાં, એનું કારણ એ છે કે આખી દુનિયા માત્ર આર્થિક વિકાસ અને માત્ર સોસાયટલ સ્ટેટસ ઉપર આખી ચાલે છે. સર્વગ્રાહી વિકાસ આપણો થવો છે. સર્વ પ્રકારની લક્ષ્મી આપણે કમાતા શીખવી જોઈએ. અને લક્ષ્મી કમાવામાં શું મૂળમાં હોવું જોઈએ તો કહે છે ધર્મ. ભગવાન કહે છે કામ પણ ધર્મથી ઉપાર્જન કરો, મારું સ્વરૂપ છે. અને જો દુનિયાની કોઈ સંસ્કૃતિમાં આવો ભાવ નથી. લક્ષ્મી આપણા માટે સાક્ષાત દેવી છે. પૈસા લક્ષ્મીજીની આપણે પૂજા કરીએ છીએ. એક રિક્ષાવાળો પણ લુક એટ અવર કલ્ચર. સવારે પહેલી પોણી હશે તામાં 2 વાર કરશે, અને પહેલી પોણીમાં કોઈ માથાકૂટ કરે, સાહેબ માથાકૂટ ના કરો, પોણી જે આપી દો. રિક્ષાવાળો, ચાની લારીવાળો સવારે તમે ચાલીને ક્યાંક જતા હશો તો એ પહેલી પોણી આપી દેશે. અને આપણે પણ ધનતેરસે પૂજા કરીએ
લક્ષ્મીજી છે ને નારાયણના ઘરવાળા છે. એક મહાત્મા બહુ સરસ વાત કરતા હતા कि भैया लक्ष्मी जी के साथ नारायण भी रखो, उसको अकेली को कबाट में तिजोरी में रखोगे तो पति उसका डंडा मारने आ जाएगा और ले जाएगा. એટલે લક્ષ્મીજી ટકતા નથી. લક્ષ્મી નારાયણ ભેગા જ છે. નારાયણ એટલે કોણ? વિષ્ણુ સહસ્ત્રમાં આપણે બોલીએ છીએ ધર્મો ધર્મ કો ગોપતા, સાક્ષાત ધર્મ છે. જ્યાં નારાયણ છે ત્યાં જ લક્ષ્મી છે. લક્ષ્મીનો વિસ્તૃત અર્થ સુખ કરી શકાય છે, ખાલી પૈસા નથી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે ગૃહસ્થીએ 8 પ્રકારની લક્ષ્મી કમાવાની છે. અષ્ટલક્ષ્મીના મંદિર છે, અમારા આશ્રમમાં પણ છે. એકલું ધનથી સુખ નથી થતું. ધનલક્ષ્મી, ધાન્યલક્ષ્મી, ધૈર્યલક્ષ્મી, વરલક્ષ્મી, ગૃહલક્ષ્મી, સંતાન, બધી અષ્ટવિદ્યો, બધા પ્રકારના સુખ કમાવા છે. અને તો જ કમાઈ શકાશે જો જીવનમાં ધર્મ હશે. ધર્મ એટલે મર્યાદા. અને બહેને જે શ્લોક ઊભો કર્યો ને, થાય છે શું? ધ ગ્રીડ ફોર પાવર, ધ ગ્રીડ ફોર મની ક્રિએટ્સ અ પ્રેશર હિયર. તમે બધા ફ્લાઇટમાં સાંભળતા હશો, ઇફ ધ પ્રેશર કમ ડાઉન ધ માસ્ક વિલ ફોલ ડાઉન. આખું લાંબુ લાંબુ જાહેરાતો કરે, સૌથી પહેલાં પહેરજો ને પછી બીજાને પહેરાવજો. એ પ્રેશરનો તો આપણે કોઈ અનુભવ નથી કર્યો. સારું છે, આપણા પુણ્ય, કોઈએ નથી કર્યો. પણ અહીં પ્રેશર હોય છે. ઇટ્સ અ ટ્રેમેન્ડસ પ્રેશર ટુ ડુ, ટુ અચીવ. અને ત્યારે યોગ્ય અયોગ્યનો ખ્યાલ નથી આવતો. એન્ડ ધેન યુ ટેન્ડ ટુ કોમ્પ્રોમાઇઝ ધ થિંગ્સ, knowing fully well that I am compromising, knowing fully well that I shouldn't be doing like this, but we end up doing this helplessly. એ અસહાયતા એ અપરિપક્વતાની નિશાની છે. The real strength is I am master of myself. I am not driven by my ambitions or force. I drive that. એ ખરી તાકાત છે. તાકાત એ નથી તમે દુનિયા બદલી શકો. રાવણ આખી દુનિયા પર રાજ કર્યું, શું મળ્યું? He just couldn't stop himself from one word. આખા રામાયણમાં એને બધાએ રોક્યું છે. દુર્યોધનનો શ્લોક એને કહ્યું, આ જ પ્રોબ્લેમ છે. ધર્મનો અર્થ છે મર્યાદા. ધર્મનો અર્થ ઢીલા ટપકા નથી. ધર્મનો મૂળ અર્થ કોઈ આસ્થા વિશેષ, કોઈ ગ્રંથ વિશેષમાં આસ્થા, ગુરુ વિશેષમાં આસ્થા, ભગવાન વિશેષમાં આસ્થા, એનું નામ ન લેવું, નાનું લેવું, ઇટ ઇઝ નોટ ધર્મ. ધર્મનો અર્થ છે કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિવેક. ધર્મનો અર્થ છે યોગ્ય અયોગ્યનો વિવેક. આ જ્યારે હશે ત્યારે જીવનમાં સર્વગ્રાહી સુખ આવશે. ખાલી સંપત્તિથી સુખ આવતું હોત તો કદાચ સૌથી હાઈએસ્ટ જીડીપી વાળા અમેરિકા અને ચાઇના સૌથી સુખી દેશો હોત, વિચ ઇઝ નોટ ટ્રુ. તમારે સુખી થવા માટે મન પણ જોઈએ છે. યુ નીડ અ માઇન્ડ વિચ ઇઝ ટુગેધર, વિચ ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ કોન્ફ્લિક્ટ્સ, હર્ટ્સ એન્ડ ગિલ્ટ્સ. અને સાથે સાથે જેમ મેં કહ્યું તેમ સર્વ પ્રકારના સુખ અષ્ટલક્ષ્મી કમાઈએ તો જીવનમાં સુખ અને શાંતિ આવે. આ પ્રસંગે સંદીપભાઈએ જે ચિંતા વ્યક્ત કરી એમાં એક આશાનું કિરણ પણ મને દેખાય. એમણે કહ્યું કે આ જીસીસીઆઈમાં પહેલો પ્રસંગ છે કે કોઈ સ્વામીજી આવ્યા છે. હું માનું છું કે આ કામ અમૃતભાઈ વખતથી થવું જોઈતું હતું. સંદીપભાઈએ નવો ચીલો ચાતર્યો છે. So I think we need to pay attention. એમણે પણ એક બીજી વાક્ય કહી, આજે તમે જોશો ખરેખર આપણે સ્વર્ગમાં જ જીવીએ છીએ. એવરીથિંગ ઇઝ ઓન ફિંગર ટીપ. હવે તો ફિંગર ટીપની જરૂર નથી, સેન્સરથી ચાલે છે. એઆઈને લીધે ગાડીઓ પણ આવી ગઈ. અમારા રામદેવ ગઈકાલ ફરી આવ્યા છે કેલિફોર્નિયામાં, એઆઈની અંદર, ઓટોમેટેડ કારની અંદર.
So everything is there. આ વડીલોએ નાનપણમાં જોયું છે ઘરમાં 24 કલાક લાઇટ હોવી લક્ઝરી હતી. હવે તો અમારે આશ્રમોમાં એસી મુકાવવા પડે છે. So luxury. Life is very comfortable. પણ સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધ્યું છે. સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લાઈફ હેઝ ગોન ડાઉન. Both individual and societal and national. Unfortunately, there is no index. There is an index for Bombay Stock Exchange. There is index for Delhi Stock Exchange. New York, બધું તમે જુઓ છો. There is no index for societal happiness. There is no index for societal peace. Because everybody is out to grab. એમાંથી એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મર્યાદાઓ તૂટતી જાય છે. GCCIએ આજે પહેલ કરી છે. હું ઈચ્છું કે આ પહેલ હજુ આગળ વધે. We can have some sessions, workshops for corporate people, telling the need and the way to implement dharma. અને એ જ વસ્તુ ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવશે. જીડીપી વધવાથી નથી બનવાની. એથિકલ જેટલું આપણું જીવન હશે ધર્મમય, જેટલું મર્યાદામય હશે અને જેટલું ત્યાગમય હશે બીજા માટે. આપણે તો ગળથુથીમાં હતું કે ઘરમાં સંયુક્ત કુટુંબ જ હોય. એમાંય બધા બે ચાર વિધવા ફોઈ હોય, માસી હોય, એને બધા પૈસા જતા હોય કે ભાઈ એમનું ઘર આપણે ચલાવવાનું છે. એ કુટુંબને બદલે આજે અમે બે ઠેકાણે નથી રહેતા. ડિવોર્સ કેસીસ એટલા બધા વધી ગયા છે અને એવી નાની નાની બાબતોમાં જે ઝઘડા થાય છે. યુ કેન સી ધ કોર પર્સન ઇઝ સો શેલો. મૂળ વ્યક્તિત્વમાં એટલી બધી છીંચરું છે કે આપણે તેને શું કહેવું. The GCCI, I am sure that they will push the laws and the policies favoring the businessman. The government is conducive. They want it to grow. આવી પહેલ કરે સમાજનું ખાલી સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ન વધે, સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લાઈફ વધે એવી અપેક્ષા અને સંદીપભાઈને ટીમને ખૂબ અભિનંદન સાથે આવા કોઈ સારા કાર્યક્રમો થતા રહે. જો તો બીજા કંઈ ખરાબ નથી થતા એમ નથી કે પણ આજે આની જરૂરિયાત છે. નાની નાની બાબતોમાં રોડ રેજ, ટ્રાફિકના ઝઘડા બધા એટલી બધી તપેલી ખોપરીઓ છે કે પાણીના છંટકાવ કરીને ફર કરતું ઉડી જાય એમ કકડાટ ચાલતો હોય છે. થોડીક સમાજમાં શાંતિ લાવવાનો પણ અને કુટુંબ પ્રેમથી જીવવાનો પણ આપણે પ્રયત્ન કરી શકીએ. તમારી આવનારી પેઢી તમારા કરતાં વધુ ધર્મમય થાય એવા આશીર્વાદ સાથે. કારણ કે આ પેઢીને એટલું બધું ઇનપુટ નકામું આવે છે. ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન આર વિથ ધ મોબાઈલ, they are so busy with that, so there is no control on this social media. એવા સમયે વધુ સંસ્કારી સમાજ મળે એના માટે આ પ્રયત્ન પણ કરો. આપની સંપત્તિ એવા કામમાં વપરાય એ શુભેચ્છા સાથે સૌને મળ્યાનો આનંદ ખૂબ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. પરમાદરણીય ઓમ નારાયણ સમારંભાં શંકરાચાર્ય મધ્યમાં અસ્મદાચાર્ય પર્યંતાં વંદે ગુરુ પરંપરાં. શ્રીમત્પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય વર્યાઃ પદવાક્ય પ્રમાણ પારાવાર પારીણાઃ યમનિયમાસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધ્યષ્ટાંગ યોગાનુષ્ઠાન નિષ્ઠાઃ તપશ્ચર્યાચરણ ચક્રવર્તિનઃ અનાદ્ય વિચ્છિન્ન ગુરુ પરંપરા પ્રાપ્ત વૈદિક ધર્મ પ્રચારણ પરાયણાઃ सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निखिल निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः
विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः श्रीद्वारकाधीशसमाराधनमानसाः श्रीचन्द्रमौलीश्वरसहितशारदाम्बोपासकाः पश्चिमाम्नाय श्रीशारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितश्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री सदानन्द सरस्वती वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद करो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो, सिद्धेश्वर महादेव की जय हो, भद्रकाली मैया की जय हो, राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी मात की जय हो, श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरवोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। कार्यक्रम में उपस्थित शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष श्री परमात्मानंद जी महाराज, हमारे सब कर्मचारीगण, विद्वत वृंद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी, देवियों, सज्जनों, व्यापार करते हैं। व्यापार किसके लिए करते हैं? देश के लिए या समाज के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने अधीनस्थ सेवकों के लिए और अपने लिए। आपके शरीर में इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, ये किसके लिए है? आपके लिए। आप व्यापार किसके लिए करते हैं? इस देह के लिए। यह देह किसके लिए है? विचार करवानी बात है कि नहीं? ये देह किसके लिए? ऐसे ही ना आगे बढ़ेंगे। अपनी उन्नति कैसे करोगे आप? कैसे करेंगे? जब आपको सब कुछ मिल गया, जितना अपेक्षित था सारा प्राप्त हो गया, अब जो चाहिए उसके लिए तो यह समझना ही पड़ेगा कि ये देह किसके लिए है। क्योंकि देह को जो पाना था वो तो पा लिया, रोटी कपड़ा मकान। अब ये देह किसके लिए? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते
नार्थश्च धर्मे कान्तस्य कामो लाभो यः स्मृतः कामश्च नेन्द्रियप्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवश्च तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म किसके लिए करते हैं? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। धर्म से हमें धन नहीं कमाना है, धन कमा करके धर्म करना है। हनुमान जी का मंदिर इसलिए नहीं बनाना है कि डब्बा में चढ़ोतरी आवेगी, इसलिए बनाना है कि कॉलोनी का कल्याण हो, पूरी सोसाइटी का कल्याण हो। हनुमान जी महाराज शनिवार को हम वहाँ जाकर के आराधना करें, इसलिए धर्म करना है। धर्म से अपवर्ग की प्राप्ति करनी है, धर्म से अर्थ से धर्म करना है। इंद्रियां किस लिए हैं? इंद्रियों से जीवन निर्वाह करना है। कामस्नेन्द्रिय प्रीतो, इनसे प्रीति नहीं करना है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए है। तो जीवन किसके लिए है? फिर जीवन किसके लिए है? तो उपदेश दिया वेद व्यास जी ने, श्रीमद् भागवतकार ने, जीवश्च तत्व जिज्ञासा। जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। तत्व क्या है? उसे जानना है। जिसे जानना है उसे तत्व कह रहे हैं, उसे तत्व कहते हैं। तो वो तत्व क्या है? तो बदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। अद्वय ज्ञान को प्राप्त करना ही तत्व है। ब्रह्मेति परमात्मेति, उसको जान लेना ही तत्व है, वही जानना है। हमारे जैसे व्यापार से हम धन कमाते हैं, व्यापार से, दुकान से, खेती से धन कमाने के अनेक साधन आप लोगों के पास हैं, उससे धनार्जन होता है, करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से व्यापार से जब हम धन कमाते हैं, धन कमा करके करते क्या है? भरण पोषण करते हैं अपना और अपने आश्रित लोगों का। उससे किस फल की प्राप्ति होती है? क्या मिलता है उससे? हमारा जीवन चलता है, जीवन चल रहा है हमारा, और जीवन चलाने के लिए जो पर्याप्त हो गया है, माने आहारार्थम कर्म कुर्यात् आनंदम, भोजन के लिए ही काम करते हैं ना। ये मनुष्य भोजन के लिए ही तो काम करता है। भोजन क्यों करता है? प्राण संधारणार्थम, प्राणों को धारण करने के लिए भोजन करता है। क्योंकि ये जो मनुष्य के प्राण हैं, इनकी प्राणों की रक्षा भोजन से ही हो सकती है, अन्न और जल से। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोहकौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड्उर्मी रहित स्वयं। जो षड्उर्मी से रहत है, 6 तरंगों से रहत है, उसे जानना है। वदन्ति विदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम्, उसे जानना है। तो क्षुधा और पिपासा ये प्राण की तरंग है, इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। तो एक दूसरे से हमारा तारतम्य स्थापित होता है। काम, भोजन प्राप्त करने के लिए हम काम करते हैं, और भोजन करते हैं प्राणों की रक्षा के लिए। प्राणों की रक्षा क्यों करते हैं? प्राण संधारणार्थम प्राण संधार्य। प्राणों को धारण क्यों करना चाहता है मनुष्य? जीवित क्यों रहना चाहता है? तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व जिज्ञासा के लिए, ताकि तत्व जिज्ञासा कर उसे प्राप्त कर सके, जान सके। अद्वय ब्रह्म, अद्वय को ही जानना है, बाकी तो जाना हुआ है। जो अहमदाबाद में रहते हैं वो अहमदाबाद को नहीं जानना चाहते। आप अपने परिवार में रहने वालों को आप नहीं जानना चाहते, क्योंकि आप रहते हैं। जानना कौन सी वस्तु है आप, जिसे आप नहीं जानते हैं? तो दृश्यमान जगत, पूरा प्रपंच तो दिख रहा है। अहमदाबाद के सबसे ऊपर के टावर पे आप खड़े हो जाएंगे तो पूरा अहमदाबाद दृष्टिगोचर होगा, दिखाई पड़ेगा, दृश्य है। जानना क्या है? तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए हम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं।
तो श्री राम ने पूछ लिया अपने गुरुदेव से, माने वशिष्ठ जी से, कि गुरुदेव तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए। कितने ऊपर की बात है, आप देखें श्री राम क्या पूछ रहे हैं। शिष्य बनकर के, परमात्मा होते हुए भी गुरु के चरणों में बैठ कर के क्या पूछ रहे हैं कि गुरुदेव तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहिए। प्राण संधारणार्थम जीवस तत्व जिज्ञासनार्थम तत्वम जिज्ञास्यम। तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तो गुरुदेव बोले येन भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो, ताकि दुख ना हो। तब श्री राम ने आगे का प्रश्न कर दिया, गुरुदेव दुख किसे कहते हैं? जीवात्मनः किम निमित्तम दुखम। ये दुख किसे कहते हैं, अब ये बताइए। एक दूसरे तो वहाँ पर आगे प्रसंग आएगा कि जन्म होना ही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। इस बात को अभी यही छोड़ते हैं, जन्म लेना ही दुख का मूल कारण है। अब यहाँ आ जाए व्यापार में। व्यापार और वाणिज्य हमारी भारतीय सनातनीय परंपरा में वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आदि सारी व्यवस्था चारों वर्णों की बनाई गई है। उन चारों वर्णों के धर्म भी निश्चित हैं, उन्हें क्या करना चाहिए यह भी निश्चित है। तो वाणिज्य भी बताया गया है, वाणिज्य करना चाहिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्य ये करना चाहिए। तो वाणिज्य व्यापार जो हम करते हैं वो व्यापार हम अपनी देह के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी राजा रघुगण को भवाटवी का एक उपदेश देते हैं। सिंधु सौवीर देश के राजा थे, उनका नाम था रघुगण। कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। राजाओं को 4 कहार लेकर के जाते हैं, पालकी में वो बैठते हैं। एक कहार को कोई तकलीफ हो गई, चल नहीं पा रहा था, तो 3 कहार से पालकी चल नहीं सकती है। पालके में 2 डंडे होते हैं और 4 लोग कंधे पर रखते हैं उसको, और पर्दा वगैरह लगा रहता है, उसमें राजा या रानी लोग बैठ करके जाया करते थे। कोई वहाँ दिखा नहीं। भरत जी तपस्या करते हुए भ्रमण कर रहे थे अरण्य में, जंगल में। 3 कहारों ने पकड़ करके उनको ही पालकी में जोत दिया। पालकी ढोने का अभ्यास नहीं था, चल नहीं पा रहे थे, तो पालकी हिली, हलन हुआ, राजा की निद्रा भंग हुई। उन्होंने पूछा कि कौन है जो पालकी ठीक से नहीं चला रहा है? तो तीनों कहारों ने सारी बात बताई और बड़ा प्रसंग है। राजा ने कहा उसकी जड़ भरत जी की तरफ देख करके कि तुमसे चलते नहीं बनता है, देखने में तो तुम्हारा शरीर बहुत तंदुरुस्त है, मोटे हो तुम, चलते नहीं बनता, क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं? तो जड़ भरत बोले, राजन तुम किसे ठीक करोगे? यदि तुम पांच भौतिक देह को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हारा भी पांच भौतिक देह है, मेरा भी पांच भौतिक देह है। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु पंच तत्वों से निर्मित है, तो ये तो ठीक करने लायक ही है। मनुष्य की देह से गलती होती है, इसको ठीक कर सकते हैं आप करना चाहते हैं। और यदि आत्मा को ठीक करना चाहते हैं तो आत्मा जो आप में बैठा हुआ है वही मुझ में बैठा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, उसे ठीक किया नहीं जा सकता है। और अगर आप देह को देह से ठीक करना चाहते हो तो जिन तत्वों से मेरी देह का निर्माण हुआ है उन्हीं तत्वों से तुम्हारी देह का निर्माण हुआ है, तो तुम किसे ठीक करना चाहते हो? राजा रघुगण समझ गए। राजा लोग पहले विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, सत्संग करते थे, लेकिन राजा अभिमान होता था उन्हें राजा होने का अभिमान हो जाता था। ये अभिमान ही मनुष्य के पतन का कारण है। धन का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है, बल का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है,
ज्ञान का अभिमान ज्ञानी के पतन का कारण है। ज्ञान का अभिमान अज्ञानियों से दूर कर देता है। धन का अभिमान निर्धनों से हमें दूर करता है। बल का अभिमान हमें निर्बलों की सहायता नहीं करने देता है। अभिमान मुक्त होना चाहिए। राजा रघुगण पालकी से उतरे, प्रणाम किया। कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जड़ भरत जी ने कहा 100 जन्म तक राजा बनते रहो और 100 जन्म तक भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते रहो, कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक राजा होने की टोपी उतार करके संतों के चरण में नहीं रखोगे। संतों के महापुरुषों के चरणों में जब तक अपना ये मुकुट अर्पण नहीं करोगे, अपना मस्तक उनके चरणों में नहीं रखोगे, तब तक रघु गणई तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणा गृहात्मा न छंदता नैव जलाग्निसूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की पादुका की चरण, उनके चरणों की रज जब तक मस्तक पर नहीं लगेगी तब तक तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। साष्टांग लौट गया राजा। और फिर वहाँ राजर्षि भरत ने भवाटवी का वर्णन किया। वह श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध, पंचम स्कंध में बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर। भवाटवी संसार कैसे, इसमें व्यापार कैसे किया जाता है। व्यापार करने के लिए ही मनुष्य को भेजा। जब ये मनुष्य माँ के गर्भ में था, मनुष्य के गर्भ में, माँ के गर्भ में हम रहते हैं, तो ये जीव प्रार्थना करता है परमात्मा से, सनातन परमात्मा से प्रार्थना करता है। अश्वक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्याये ब्रह्म सनातनम। प्रभो, अशुभों का नष्ट करने वाले, अशुभ नष्ट करने वाले और मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले, यदि मैं इस गर्भवास से मुक्त हो जाता हूँ, आपका भजन करूँगा, सनातन का भजन करूँगा, सनातन ब्रह्म का भजन करूँगा। ये प्रतिज्ञा करता है, कौल करार करता है। जन्म होने के बाद भूल जाता है। परमात्मा ने 84 लाख शरीर में से निकाल करके ये मनुष्य की देह हमें प्राप्त कराई। आए हम मनुष्य बने। जन्म लेने के बाद उस परमात्मा को भूल गए। परमात्मा ने देह देकर के धर्म की पोटली हमें दी थी। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धृति, क्षमा, नमस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि की पोटली बना करके हमारे सिर पर रख दी थी। सारा विश्व का ज्ञान मनुष्य के इस मस्तिष्क में है। आप लोगों के पास है वो, तभी ना आप सब कुछ बना रहे हैं और चंद्रमंडल तक पहुंच गए। हमारा चंद्रयान वहां तक पहुंच गया। ये हमारी उपलब्धि, हमारे देश की, हमारे मस्तिष्क की उपलब्धि है। सब कुछ हमारे पास उसने भर करके भेजा, हमें परिपूर्ण करके भेजा। संसार रूपी जंगल में हम आए, अरण्य में भ्रमण करने लगे, पगडंडियों में चलने लगे। घनघोर जंगल आया, उस घनघोर जंगल में वासनाओं और कामनाओं का जंगल आया, तृष्णा का जंगल आया, इच्छाओं का जंगल। भटक गए उसमें। शाम का समय हो गया, 6 डाकू मिले। 6 डाकुओं ने हमको लूट लिया। धर्म की पोटली में से जिस को हमने सुरक्षित करने की कोशिश की, उसी को उन्होंने पहले लूटा। काम सवार हुआ हमारे ऊपर, क्रोध सवार हुआ, लोभ सवार हुआ, मद सवार हुआ, मत्सर सवार हुआ। ये जो 6 शत्रु हैं,
छहों शत्रुओं ने एक एक वस्तु हमारी धर्म की पोटली में से निकालते गए। असहाय हो गए हम, अज्ञान अंधकार में भटकने लगे। भटकते भूख से प्यास से व्याकुल होने के कारण एक कुएं में, एक खाई में गिर पड़े। जिस कुएं में गिर रहे थे उस कुएं में एक जड़ थी, वृक्ष की जड़ हाथ में आ गई तो उसको पकड़ लिया, पकड़ करके लटक गए। सोचा सवेरा होगा, प्रातः काल होगा, पकड़ के ऊपर निकल जाएंगे। प्रातः काल हुआ, नीचे की तरफ देखा तो एक काला सांप बैठा हुआ था सूखे कुएं। ऊपर की तरफ देखा तो दो चूहे जड़ को काट रहे थे, एक सफेद था एक काला था। और ऊपर नजर गई तो एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, मधुकूड़ा, उसमें से मध टपक रही थी। जीभ को बाहर निकाली, एक बूंद मधु की पड़ी, उसको उदरस्थ किया, चाट लिया, फिर जीभ बाहर निकाली, दूसरी पड़ी, तीसरी पड़ी, चौथी पड़ी। मधुरता का प्रेमी है ये मनुष्य। मद के लोभ में, मधु के लोभ में ऊपर निकलना भूल गया और दो चूहे सफेद और काले जड़ को काट रहे थे। काट दिया उन्होंने, जड़ के सहित नीचे गिरा। काला सांप वहां बैठा ही था, उसने डंक लिया, दंत दिया, मृत्यु हो गई। जिसको प्राप्त करने के लिए आए थे, जो व्यापार करने के लिए आए थे, जिस वाणिज्य के लिए हमारी नियुक्ति की गई थी हमारे मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा, गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमपिता के द्वारा, वो हम नहीं कर पाए। आयु रूपी जड़ थी, इस संसार रूपी कूप में वह आयु रूपी जड़ थी और दो चूहे उस जड़ को काट रहे थे, दिन और रात। दिन का सफेद चूहा और रात्रि काला चूहा रात्रि। एक दिन एक रात कम हो रही है ना हमारी आपकी। लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, वृद्धि का मनाते हैं कि कम होने का मनाते हैं? विचार करवानी बात है कि नहीं? यहाँ प्रश्न बताए ना। खैर, अच्छी बात है, प्रसन्नता है। अच्छे काम किए तो मनाना चाहिए, और अच्छे काम वालों को ये तो क्या है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन में च, निश्चित है कहाँ किसको क्या होना है। लेकिन कामनाओं और वासनाओं की जो मद टपक रही थी उसके कारण अपनी हमारी कितनी आयु है भूल गया, और दिन रात रूपी चूहों ने जड़ को काट दिया। 100 साल के हो गए, यमराज का बुलावा आ गया। काला ब्याल मुखग्रासो, काल रूपी ब्याल के मुख में चले गए, नीचे गिरे और हमारा काम तमाम हो गया। जिस धर्म व्यापार के लिए हमको भेजा गया था वो हम नहीं कर पाए। व्यापार है, यही सबसे बड़ा व्यापार है। जिस व्यापार से हम अपना परिवार, धन के द्वारा भी हम धर्म का व्यापार कर सकते हैं, वो भी व्यवस्था श्रीमद् भागवत में ही है। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन वित्तम यहा मूत्र च मोदते। हमने जो कुछ भी कमाया है उसके 5 विभाग कर लेना चाहिए। धन से यदि सुख चाहिए तो पहले ये समझ लो, सुखस्य मूलम धर्मा। वो संचालिका महोदया पहले ही बोल चुकी हैं, सुख अगर चाहिए तो धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। सुखमिच्छन्ति सर्वे ही धर्मेणैव कृमाद्यः। धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। कौन कर सकता है धर्म का पालन? मानुषेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्ततः। धर्माधर्म में प्रवृत्ति मनुष्य की ही तो हो सकती है। अधर्म का त्याग करना है और धर्म का पालन करना है। तो धर्म से, धन से यदि धर्म करना है, हमें धन से यदि सुख प्राप्त करना है तो फिर धन के 5 विभाग कर ले। एक, जैसे
1 लाख रुपया एक दिन में कमाया। आप लोग तो कमा लेते होंगे एक दिन में 1 लाख, बहुत लोग नहीं कमा पाते हैं। गरीब लोग 300 रुपये ही कमाते हैं। जितना भी कमाते हैं सभी की स्थिति अलग अलग होती है और पूर्व जन्म के पुण्य पाप का भी प्रभाव इस जीवन में पड़ता है। बहुत से लोग मिट्टी उठाते हैं तो सोना हो जाता है और बहुत से लोग आपके सामने ही करोड़पति थे और अब उनके पास नहीं है। ऐसे भी लोग आपके समाज में हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि खूब हो आपके पास, भगवान द्वारकाधीश खूब आप है, खूब दे, आप सबको खूब दे, हमारा देश विश्व में कीर्तिमान स्थापित करे और पहली व्यवस्था बने 5वीं की जगह 3री की जगह, यही चाहते हैं। लेकिन यदि हमें धन से धर्म का सुख प्राप्त करना है, धर्म का फल प्राप्त करना है, तो धन के 5 विभाग कर ले। 1 विभाग धर्म के लिए, दूसरा विभाग यश के लिए, तीसरा विभाग काम के लिए, चौथा विभाग व्यापार से व्यापार बढ़ाने के लिए और 5वां विभाग समाज के लिए। 5 टुकड़े कर लें। यदि 1 लाख रुपया कमाया है तो शाम को उसके 20-20 हज़ार के 5 विभाग कर दे तो 3 विभाग तो आपके लिए रह जाएंगे। धर्म वाला केवल धर्म में चला जाएगा, जहाँ आपकी इच्छा है आप वहाँ दे दीजिए। दूसरा जो विभाग है व्यापार से व्यापार बढ़ाने के लिए, वो आपके पास ही रहा। स्वजनाय अपने परिवार के लिए जो विभाग है 20 हज़ार, वो भी आपके पास ही रह गया। और चौथा कामाया के लिए, हाँ अपने सुख के लिए, पोताना सुख माटे, हाँ अपने सुख के लिए काम आए। तो 4 विभाग तो आप ही के पास रह गए हैं। केवल एक समाज की बात है कि आपकी जो समाज है, जिससे आपने उन्नति प्राप्त की है, जिसमें आपका जन्म हुआ है, जो आपकी जाति है, जो आपका धर्म है, जो आपका वर्ण है, जो आपका कुलदेवी कुल देवता है, उसकी आराधना में, पूजा पाठ में, समाज के हित में करना है। तो फिर भी 60 हज़ार तो आपके पास ही रह गए, फिर भी 60 हज़ार रह गए। अगर 20 हज़ार का भाग आपने खर्च कर दिया समाज के हित में, तो नाम होगा, यश मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, वो भी तो एक फल है। प्रसिद्धि भी अच्छे काम का फल है, तो प्रसिद्धि प्राप्त होगी तो आपके बच्चों का गौरव, आपके बच्चों में गौरव का सम्मान बढ़ेगा। हमारे पिताजी गए, तख्ती लगी हुई है वहाँ ना, शिवानंद आश्रम में तख्तियाँ लगी हुई हैं, किसने रूम बनाया है, तो उनके परिवार वाले देखते हैं, हाँ होगी, वो नहीं, ठीक है, ठीक है। तो प्रसिद्धि भी एक हमारी अच्छे काम का फल है। और परलोक में हमारे साथ कोई जाता नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो गए हैं वो लेके नहीं गए हैं, यहीं छोड़ करके गए हैं। तो नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता चतिष्ठति, न पुत्र दारा न ज्ञाते धर्मस्तिष्ठति केवलम। कोई साथ देने वाला नहीं है। हमने जो धर्म का फल धर्म किया है, उसका जो फल है, जो यज्ञ किया है, उसका जो अपूर्व है, वही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए धन का संपादन धर्म के लिए करना चाहिए। भोजन के लिए तो भोजन की व्यवस्था वही भी करते हैं जो व्यापार नहीं करते। भोजन की व्यवस्था उनको भी प्राप्त है जो नौकरी नहीं करते। भोजन की व्यवस्था उनको भी प्राप्त है जो कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं से उनको मिल ही जाता है। यानी मनुष्य देह के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं, उनको आप देखेंगे तो मछली या मछली के बेटे कहीं नौकरी करने के लिए नहीं जाते, उसमें ही उनका सब कुछ हो जाता है। पक्षी को इस वृक्ष से उस वृक्ष पर, उस वृक्ष से उस वृक्ष पर जाना होता है, उड़ना होता है, पाना होता है, पा लेते हैं। हमारी विशेषता क्या है? हमारी विशेषता क्या है कि हम खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा, कारखानों के द्वारा जो हम एकत्रित करते हैं, उसका सदुपयोग हम कैसे करें, उसके लिए यह उपदेश है कि हम अपने धन के 5 विभाग करें। क्यों करें? कुछ लोग कहते हैं क्यों करें, हमने कमाया है तो बीजा ने दूसरों को हम क्यों दें? इसलिए करें कि पहले आपने किया था तो आज पाया है,
आज पा रहे हैं, करते रहना चाहिए। मनुष्य नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और किसी से आशा नहीं है। माता पिता जैसे पुत्र से आशा रखते हैं, संतान से आशा रखते हैं, इसी तरह से परमपिता प्रजा से, सृष्टि से, हम लोगों से आशा रखता है कि कम से कम मनुष्य के शरीर से तो धर्म का पालन होगा। ये आशा परमात्मा को हुआ करती है। उसकी आशा पर हमें खरा उतरना चाहिए। यही हमारे मानव देह का व्यापार है, यही वाणिज्य है और यही धर्म है। धर्म और व्यापार की संगति कैसे बैठाएंगे, कैसे स्थापित कर सकते हैं? जब तक हम धर्म का पालन नहीं करेंगे और व्यापार में धर्म को समाहित नहीं करेंगे, तब तक धर्म और विज्ञान, धर्म और व्यापार की संगति नहीं बैठ सकती है। इसलिए हमारा व्यापार धर्म पूर्वक होना चाहिए। व्यापार से कमाए हुए धन से हमें धर्म करना चाहिए ना, क्योंकि कहा गया है दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 ही गति होती है, या तो हम दान कर लें या भोग कर लें। अगर दोनों काम नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगा वो धन। इसलिए अच्छे काम में धन लगाना चाहिए, अच्छे काम में मन लगाना चाहिए। अपनी जो शक्ति हमें जो प्राप्त है, जिस शक्ति का संचय हमने किया है और जो संस्कारों से या आशीर्वाद से, अनुग्रह से प्राप्त है, उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए। आप सभी को भगवान द्वारकाधीश संदीप भाई के लिए पहला अवसर है। अभी अभी इस पद पर आए और अच्छा सत्संग कहा। हाँ, आप लोगों के तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बहुत हाई फाई कार्यक्रम होते हैं, तो धर्म के प्रवचन का अवसर प्राप्त हुआ। यही हमारा जीवन है, यही जीवन है। इसी जीवन से एक ऐसे तत्व की बात प्राप्त होगी जो जिंदगी भर सुकून प्राप्त कराएगी, हमें जिंदगी भर सुख प्राप्त कराएगी, जिंदगी भर सुख प्राप्त कराएगी। क्योंकि जितने भी भौतिक सुख हैं वो सब प्राप्त हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। अब तो केवल आनंद चाहिए और शांति चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए जिस सुख को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। सभी को भगवान द्वारकाधीश और भगवत पादाब्ज शंकराचार्य का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.